آج بڑی ہی زبردست، بڑی ہی پیاری، بڑی فیمس شخصیت جو فیصل آباد کی، جس نے نہ صرف فیصل آباد کا بلکہ پاکستان کا اس نے نام روشن کیا۔ فیصل آباد کے رہنے والے یعنی لائل پور ہماری شناخت ہے، تو جہاں بھی چلے جائیں اپنے شہر، اپنی اس دھرتی کو، اپنے لوگوں کو ہم کبھی نہیں بھولتے، اور الحمدللہ فخر ہے کہ ہم نے اس سرزمین سے سیکھا۔ مجھے موقع ملا صحافت کے اس ستون سے سیکھنے کا جسے دنیا حافظ محمد اختر کے نام سے جانتی ہے۔ ہوسٹ نعمان نیوز ٹوڈے کے ساتھ آج بڑی ہی زبردست، بڑی ہی پیاری، بڑی ہی فیمس شخصیت جو فیصل آباد کی، جس نے نہ صرف فیصل آباد کا بلکہ پاکستان کا اس نے نام روشن کیا۔ یہ بڑی پیاری شخصیت جو کہ فیصل آباد کی جرنلزم کے اندر بڑا اس کا نام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قبلہ میرے والد محترم حافظ محمد اکرام اختر صاحب کے یہ شاگرد خاص بھی ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے پھر کیا پاکستان سے نکلتے ہوئے جاپان گئے، وہاں پہ انہوں نے اپنا نام کمایا، اور پھر ماشاءاللہ لاسٹ اولمپک میں انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ایز اے ایکسپورٹ جرنلسٹ بھی وہاں پہ کیا، اور بڑا اچھا پرفارم کیا، اور ان کو بعد میں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ارشد جب وہاں پہ گئے تو ان سے ملاقات بھی، تو ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کا نام ہے ثاقب الرحمان، اس دھرتی کی مٹی ہے۔ السلام علیکم ثاقب بھائی، آج آپ کو دیکھا بڑا اچھا لگا، اور آپ سے ملاقات، اور یہ آپ کا چہرہ ویسے ہی ہے، اسمائل ہے، 15 سال جیسے آپ بڑے بھی نہیں ہوئے، کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ جی السلام علیکم نعمان بھائی، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے جی ناظرین، نیوز کے یہ ایک ایسا چینل ہے جسے ہم باہر بیٹھ کے بھی، جاپان، یو کے، امریکہ میں بھی الحمدللہ بہت بڑی ایک سبسکرائبرز کی ایک تعداد ہے جس کو ہم محبت دیکھتے آپ کی۔ ہیں۔ تو آپ کو اس پہ ہم فیصل آباد کے رہنے والے یعنی لائل پور ہماری شناخت ہے، تو جہاں بھی چلے جائیں اپنے شہر، اپنی اس دھرتی کو، اپنے لوگوں کو ہم کبھی نہیں بھولتے، اور الحمدللہ فخر ہے کہ ہم نے اس سرزمین سے سیکھا۔ مجھے موقع ملا صحافت کے اس ستون سے سیکھنے کا جسے دنیا حافظ محمد اختر کے نام سے جانتی ہے۔ الحمدللہ ایسے اساتذہ کی خدمت سے ہمیں آج اللہ پاک نے بڑے کرم اور فضل سے نوازا، تو یہ میرے مالک کی عطا ہے۔ اور دوستو، ادب زندگی میں بڑا ضروری ہے۔ آپ جتنی مرضی تعلیم حاصل کریں، آپ جس مرضی مقام پہ پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ادب جو ہے پہلا زینہ ہے ترقی کے زینوں میں سے، تو ادب شرط ہے، اور جو کام بھی آپ کریں وہ دل سے کیجئے۔ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ان دنوں میں برداشت نہیں ہے لوگوں میں، ہم اپنی طبیعت میں تھوڑی سی برداشت لے آئے، لوگوں کو تھوڑا سا سینے سے لگا لیں، تو انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات، یہ تھوڑی سی جیسے آپ کہہ رہے ہیں بھوک ہے، بے روزگاری ہے، تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ کوئی بڑے موضوعات نہیں ہیں۔ جی اچھا، بڑی آپ نے ادب کی بات کی، جی تو ادب وہ ہے جو ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں انہوں نے ادب سے ہی وہ مقام پایا، بڑی اچھی پیاری بات کی۔ جی اچھا ثاقب بھائی بتائیں کہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے اندر، جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں باہر بہت جا رہے ہیں، جی تو جاپان کے اندر، ٹوکیو کے اندر بڑی اپرچونٹی ہے، کیا جی جی کیا بیریئر ہے، کیا لینگویج کا بیریئر ہے، کیا ہے جو ہمارا اسٹوڈنٹ اگر باہر آئے تو آپ کی توسط سے ان کو ایک ہو، اور باہر وہ جاپان میں اسٹڈی کے لیے جا سکے؟ جی سر، میں عرض کر دوں، میں جاپان میں گزشتہ 15 سال سے مقیم ہوں، اور جاپان یہ ایک ایسا مطلب ایک برانڈ نیم ہے، اس کو ہم برانڈ کہتے ہیں کہ میک ان چائنا اور میک ان جاپان۔ آج بھی لوگ میک ان جاپان چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کام میں دیانت ہے، وہ اپنا کام نہیں کرتے، وہ ان کا ریلیجن یہ ہے، وہ اس کو مذہب مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس جو بھی مطلب آپ زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں بھی ہے، مطلب یہ پیچھے یہ بچہ اپنی وینگنگ کر رہا ہے، ایکس کی وینگنگ کر رہا ہے، تو بہت اس کو ایک اچھے انداز سے، اس کو دل سے ان لوگوں نے کیا، اور پوری دنیا میں اس کو ایک اپنا ایک مقام بنایا، اور آج بھی دنیا جو ہے جاپان پہ فخر کرتی ہے کہ انہوں نے کس طرح دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک بالکل ڈسٹریکٹڈ کنٹری، ایک بالکل تباہ شدہ اکانومی، بس کے باوجود انہوں نے تھوڑے تھوڑے چاول کھا کے گزارا کیا، اور اپنے ملک کو آج وہ کہاں پہ لے گئے، اور دنیا کی بڑی معیشتوں میں سے ایک معیشت۔ جاپان اور پاکستان کا موازنہ کرنے کے لیے میں تو کہتا ہوں جی دیکھیں، پاکستان میں جتنی بھی گاڑیاں چلتی ہیں میک ان جاپان ہے، یہاں پہ کوئی میک ان چائنا، ہم چائنا کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہمارا بہت برسوں سے تعلق جو ہے وہ جاپان سے وہ رہا ہے۔ یہاں پہ جتنی موٹر سائیکلیں چلتی ہیں، ہونڈا، سوزوکی، کاواساکی، مطلب وہ جاپنیز ہیں۔ ہمارا ڈرائیونگ کا سٹائل ایک ہے، تو ہماری مشرقی روایات جو ہے وہ بہت زیادہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ اس زبان کا تھوڑا سا ڈفرنس ہے،
वहाँ पे स्टूडेंट्स और इन दिनों जो लेबर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। वो लास्ट टाइम आप बता रहे थे कि काफी ज्यादा को 3 लाख के करीब कहा था, वो ऐसे ही है। जी, अभी जब जो जापान में रेजिडेंट्स हैं उनकी तादाद अराउंड एवरेजली 30,000 के लगभग है, जिसमें मोस्टली मतलब बिजनेस वहाँ पे लोग करने के लिए जाते हैं। जापान में डॉक्टर्स नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है, लेकिन अब उनको काम का बहुत ज्यादा शॉर्टफॉल है, अपनी इकोनॉमी को वो बहुत तेजी से आगे लेके जा रहे हैं। तो उनको कम से कम 3 लाख नहीं, मतलब अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो उनको कम से कम 1 करोड़ बंदा चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जब ये वजीर खारजा थे बिलावल, तो ये जापान में गए थे, इन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया और 3 लाख बंदों को वहाँ पे जो है टेक्निकल, वहाँ पे हुनरमंद इस शोबे में उनको वहाँ पे उनकी सर्विसेज वहाँ पे दी जाएंगी। लेकिन बदकिस्मती से मैं वापस आऊँगा, हमारी यहाँ पे जो ओवरसीज मिनिस्ट्री और फिर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे ओपीएफ है, हम जैसे ओवरसीज जो रियल में मतलब हम लेके घूमते हैं कि जी हम ओवरसीज हैं, हम बाहर के पासपोर्ट और बाहर की हमारे पास पीआरस हैं, हम तो बाहर रहते हैं या बाहर यहाँ पे अपनी फैमिली वालों को मिलके बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री में प्लॉट्स भी वो खुद ले रहे हैं, स्कूलों में बच्चे भी उनके पढ़ रहे हैं, तो सारे फायदे वो खुद लगा रहे हैं। बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं सर, हर शोबे में पाकिस्तान बहुत ग्रो कर सकता है। अपनी तबीयत में पॉजिटिवनेस, मुस्बत एक तब्दीली लेके आइए। अब आपने सिर्फ ये बताया कि एक बच्चा जो बाहर जाना चाहता है, एक बच्चा जिसने एफए कर लिया है या ग्रेजुएट, तो क्या कुछ स्टेप होंगे, 2-3 स्टेप है, ये वो बच्चा अगर ये फॉलो करे तो 6 साल बाद बाहर जा सकता है जापान? इसके लिए शॉर्ट सा। अच्छा, सिर्फ जापान नहीं, मतलब पूरी दुनिया में इसके लिए सबसे देखें, आपको अपना एक माइंड जो है वो बिल्कुल सेट करना है। आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, वो कंट्री आपको वेलकम करेगा, कोई उसमें इश्यू नहीं। फॉर एग्जांपल आप कनाडा, जापान, मतलब किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, उसके लिए फिर आगे आपका इंटेंशन है कि मैं किस मकसद के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, बाहर की दुनिया पाकिस्तान की दुनिया से मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में आप जो काम कर रहे हैं, बाहर उस काम करने का एक तरीका है, उसके लाइसेंस होगा, उसकी परमिशन होगी, उसकी स्टडी होगी। आप जिस चीज में शौक रखते हैं, आप वेल्डिंग का काम, ड्राइविंग का काम, जिस चीज में आपका शौक है, आप सबसे पहले लैंग्वेज को थोड़ा सा आप यहाँ पे स्टडी तो कीजिए। लैंग्वेज आप मतलब हम यूट्यूब पे या कोई ऐसे ट्यूटर हैं या रिकमेंड करते हैं, जी, यूट्यूब से सबसे पहले मतलब बेसिक चीजें मतलब देखें, ये आपको ये बिल्कुल में फ्री में आपको मिल जाएंगे, आपको किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं। आप तो 50-100 वीडियोस आप देखें, आप घर में उसको थोड़ा सा करने की कोशिश करें। आप बेसिक इतना अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हम सेल्फ स्टडी करके इन चीजों को हम ग्रिप कर सकते हैं। यानी कि आप साकिब आप कह रहे हैं कि अगर हम बेसिक में थोड़ी सी अगर वो कर लेते हैं, अगर बच्चे मेहनत करते हैं बेसिक लैंग्वेज, इससे कोई होते हैं, कोई स्टेप होते हैं N4 N5 क्या होते हैं इनके लेवल? जी, जापान में जैसे आइल्स है या टफल है और इसी तरह पीटी है, मतलब ये इंग्लिश लैंग्वेजेस, और जबानों में जापानीज जबान में इसके लेवल है N5, N4, N3। जो लोग स्टूडेंट वीजा पे जापान इन दिनों में जा रहे हैं, तो जापान का ही इदारा जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में साल में दो दफा जो है एग्जाम वो ले रहे हैं। मैंने नम फैसलाबाद से चेक किया तो वो नहीं करवा रहे थे। जी जी, वो यहाँ पे नहीं है, वो इस्लामाबाद में आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए N5 का आपको कोर्स करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सी है, जैसे हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो जापानीज में कोन्निचिवा है, ओहायो गोजाइमास है, या शाम का सलाम करना है तो कोम्बावा है। मतलब इस तरह के शॉर्ट से मतलब वो जुमले हैं। और इस जैसे और आप कहते हैं हरूफ तहज्जी, अलिफ बे पे, तो इसी तरह जापानीज जबान में आ ई उ ए ओ। तो इंशाल्लाह आपकी वसात से इन लोगों से अगर कोई कमेंट्स आते हैं तो उनके सवालात का हम जवाब भी देंगे। स्टडीज में लोग जाना चाहें, बिजनेस की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। आप एक ऐसे मुल्क में इन्वेस्ट कीजिए जो आपको इंश्योर करेगा, वहाँ पे सेफ्टी है, वहाँ पे झूठ नहीं है, वहाँ पे दयानत है। तो अब आप बिजनेस पर्पस में आना चाहें, वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज्यादा जापानीज गाड़ियाँ पाकिस्तान में आ रही हैं, आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें, आप स्टडी करके आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। माशाल्लाह वो पाकिस्तानी 7-8-10 लाख रुपया वो आप कमा सकते हैं। साकिब ने बड़ी अच्छी बात की कि जो बच्चे हमारे यहाँ से जाना चाह रहे हैं, वो कोई लेबर में जाना चाह रहे हैं, स्टडी में जाना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो बेसिक लैंग्वेज जो हमारी यूट्यूब कुछ है N5, अगर हम N5 स्किल 1-2-3 माह के सीख लेते हैं तो हमारे लिए जापान के दरवाजे खुल जाते हैं। और आपको कोई इसमें हेल्प भी चाहिए तो ये साकिब रहमान जो फैसलाबाद का सपूत है, ये आपके साथ अवेलेबल है। फैसलाबाद के तमाम रेजिडेंट, यहाँ के रहने वाले हमारे भाई बहन, इंशाल्लाह हर मुमकिन हद तक आप वहाँ आना चाहें, हम आपको हेल्प आउट करेंगे। यहाँ पे न्यूज़ टुडे के साथ आज हम ये सेशन करें और करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। जो भी क्वेरीज, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, मैं किसी भी तरह से हम आपको
हेल्प आउट कर सके, प्लीज ग्रो करें. लाइफ एक दफा है. लोग कहते हैं कि लाइफ छोटी सी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है. तो इस नेमत पे अल्लाह का सबसे पहले शुक्र अदा कीजिए और इसमें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कीजिए कि आपका नाम बने. इस शहर से लोगों ने नाम बनाए. देखें आज नुसरत फतेह अली खान जैसे लोग जो हैं, मतलब उन्होंने अपनी फील्ड में पूरी दुनिया में नाम उनका आज गरज रहा है जी. तो इस तरह से मेहनत कीजिए, मेहनत का फल आपको अल्लाह पाक जरूर अता फरमाएंगे. तो कोई एक दो लफ्ज हाफिज मोहम्मद इकराम अख्तर साहब के लिए? हाफिज साहब इंशाल्लाह ताला जी हम उनके लिए एक तालीमी और एक सहाफती अवार्ड भी यहाँ पे शुरू करना चाह रहे हैं, जिसमें हम एनकरेज करेंगे ऐसे लोगों को कि वो येलो जर्नलिज्म और हाफिज साहब के उस सबक को याद रखें कि जिस तरीके से उन्होंने मशरक में, उन्होंने कोस्तान में, उन्होंने ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी में और पाकिस्तान के बड़े सहाफती अदारों में ना सिर्फ उन्होंने खिदमत की, ये खिदमत की, उन्होंने इबादत की, उन्होंने कसम से, और बल्कि इसके अलावा उनके जो शागिर्द हैं आज पूरी दुनिया में बड़े बड़े इदारों के साथ मुंसलिक है. तो हम खराज तहसीन पेश करते हैं. उनका ताल्लुक भी फैसलाबाद से. तो ये सरजमीन ने बड़े बड़े हीरे और बड़े कोहरे नायाब पैदा किए हैं. हमें कदर करनी है ऐसे बुजुर्गों की, ऐसे असातिज़ा की. हमें सीखना है उनसे और उनके नक्शे कदम पे चलना है. आज आप जाइए जिस यूनिवर्सिटी में जाएं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाएं, ऐसी पर्सनैलिटीज के नाम है, ऐसी पर्सनैलिटीज के नाम पे जो है ये सड़कों के नाम रखे जा रहे हैं, लाइब्रेरीज उनके नाम पे रखी जा रही. तो हमारा फर्ज है कि हम ऐसी पर्सनैलिटीज के बारे में, ऐसी शख्सियात के बारे में जानें और उनको फॉलो करें. जी बहुत प्यारी बात की. अपने बड़ों का, उस्ताद को फॉलो करें और उनको अपना, कहते हैं कि ये अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो ये हमारे लिए बड़ी अदब और चीज़ें हैं. आखिर में हम इनकी वालदा की तीसरी बरसी भी थी, हम उसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके लिए दर्जात करे, आपको सब्र दे. और ये बड़ा आज का सेशन रहा, अभी साकब निकल भी रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम ऐसे गाहे बगाहे चीज़ें आपसे अपडेट करते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे. बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. जी साहब.